ग्रेजुएशन में या आपने लास्ट ये किया बीटेक किस चीज में? Sir, optional subject was mathematics and I have done BTech in electrical engineering. अच्छा ठीक, मैथमेटिक्स। जी सर। चलिए स्टार्ट आपका सर। आपने इतने प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट से ही है यस सर। और उसके बाद फिर आप मार्केटिंग ऑफिसर जैसे जॉब में गए, अब आप ज्ञान कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो इंजीनियरिंग को किया था, एक सीट जो सब्सिडी पे जाती है, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी और को चला जाता हूँ। आप तो सिंपल ग्रेजुएशन के बाद भी ये सब एग्जाम दे सकते हो। सर आई थिंक कि जो मैंने पढ़ाई की है कॉलेज में सर, उसका कहीं ना कहीं इम्प्लीकेशन मेरे करंट जॉब में इस एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ सर। सपोज आजकल गवर्नमेंट भी सर लेटरल एंट्री के लिए लेटरल एंट्री की तरफ देख रही है, जिसमें वो स्पेशलाइज्ड लोगों को सर्विसेज में लेना चाह रही है। और सर मेरा डेटा है आपके पास, जो भी आपने कहा उसको प्रूव करने के लिए कोई डेटा है आपके पास? सर पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस आइडिया को मूट किया था और उन्होंने ये भी बोला था कि ये इनफॉर्मल वे में बोला था सर, मतलब क्या बोले कि वी नीड टू हायर दोज हु आर स्पेशलिस्ट इन दैट डोमेन, बाबूज। ये जो एक रोहिणी कमीशन ने अपना रिपोर्ट अभी सबमिट किया है, यस सर। किस फील्ड से रिलेटेड? सर इट इज रिगार्डिंग सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी सर। Some important news related to Election Commission of India. Not only one, but more than one. Sir, the prominent news that is in that is making headlines is regarding the election of election commissioners and chief election commissioners. Okay. The second one I cannot recall right now, sir. Okay. Elections have been announced in some states. Yes, sir. It has been announced in 5 states, and they in Rajasthan on 23rd November it was announced, but they asked for extending the date. So election commission has agreed. Why the reason? What is the reason? So the reason was that there is some festival in which there is mass marriages that happens. Due to that reason. Who is Attorney General of India? Sir, Attorney General of India, sir, I do not recall his name right. Can you name some? Can you name person of India who has been awarded Nobel Peace Prize? Mother Teresa has been awarded Nobel Peace Prize. The latest recipient? The latest recipient is, I think, she's from Iran. Naria Mohammadi, something like that. Narsin, yes, sir. What is her contribution? So she basically wrote about the women and their freedom rule in the Iran, in context of Iran, sir. In Iran. Yes. What is the current status in Israel? Sir, in Israel, sir, Israel is, the war broke out between Hamas and Israel. And Israel government is taking steps to curb down violence and put an end to war by doing through violent method only, sir. What is the stand taken by government of India? The Indian government has clearly condemned the terrorist activity that was done by Hamas, sir. Are Indians there in Israel? The Indians are there in Israel, sir. What government of India is doing for them? Operation Ajay, sir, to evacuate them. To evacuate the Indians present over there. Who is the Indian ambassador to Israel? Sir, I do not know the name, sir. What is the difference between ambassador and high commissioner? I do not know, sir. At some places they are called ambassador, at some places they are called Yes, sir. high commissioner. Like in Canada, they call it High Commissioner, over here ambassador. Have you heard of Commonwealth nations? Yes, sir. What does it mean? Sir, these are those nations who were earlier the part of British Commonwealth.
It was colonized by the Britishers. Those country became the part of Commonwealth nation. Was Canada a part of British colony? Yes, sir. That is why it's High Commission. Yeah. Sir, British colony, High Commission. Okay, sir. Otherwise, it is Ambassador. Ambassador. Okay, sir. Who is the Vice President of the country? Sir, Vice President of the country is Jaideep Dhankar, sir. Why was he there? Sir, due to this Pinddan for his father, I think, sir. Yes, sir. Thank you. Yes. Yes, sir. इंडिया के संदर्भ में कौन ऐसा प्रोविंस है जो पावर जनरेशन में फर्स्ट State, sir. है स्टेट? State, सर, यदि मैं गेस कर सकूं, सर मे बी महाराष्ट्र, क्योंकि गोदावरी पे काफ़ी ज़्यादा डैम्स हैं सर, तो मे बी महाराष्ट्र हो सकता है। पोटेंशियल के हिसाब से सर अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। महाराष्ट्र बिहार में जो पावर जनरेशन है इसको और बेहतर करने के लिए क्या क्या स्टेप लेने की जरूरत है? सर सबसे पहले सर रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बिहार में प्लेस किया जा सकता है, क्योंकि बिहार ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, पर यहाँ साल के बहुत समय में सूर्य की रोशनी प्रचुर मात्रा में होती है। इसके अलावा जो नदर्न बिहार है सर, वहाँ पे जो रिवर्स है सर वो यंग स्टेज में है, तो रिवर को लेवरेज करके सर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जनरेट कर सकते हैं, जिसके कारण कि फ्लड की समस्या भी काफ़ी समाधान होगा, कई एम्प्लॉयमेंट भी लगेगा और इंडस्ट्री को भी मदद मिलेगी सर। इसके अलावा सर न्यूक्लियर एनर्जी, बिहार के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में यूरेनियम की मात्रा पाई गई है, तो यदि किसी तरह से पॉलिसी मेजर लेकर यदि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेवरेज करें सर, तो यहाँ भी एक असीम संभावना दिखती है सर। बिहार गवर्नमेंट का एक आदेश आया, चीफ मिनिस्टर ने कल परसों बताया कि सोलर एनर्जी को पूरे पंचायतों में नागों पर इसको लगाया जाए। जी सर। तो आप इसको कैसे देखते हैं? सर ये एक बहुत अच्छा कदम है जो कि मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया है सर, क्योंकि सबसे पहले कि यदि सोलर लाइट हम यदि गाँव में हर चौराहे पे लगाते हैं सर, तो इससे सेफ्टी कंसर्न का समाधान होता है सर। वुमेन फ्रीली घूम सकती हैं। इसके अलावा सर हम जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म है उस पर डिपेंडेंट ना होके हम रिन्यूएबल फॉर्म पर डिपेंडेंट हैं, और ये एक कम्युनिटी ओनरशिप का एक रोल भी गांव वाले को प्ले करने का मौका देता है सर। ये जो बिहार में सिंचाई परियोजनाएं जी सर कृषि के लिए, उसमें इलेक्ट्रिक का यूज होता है। जी सर। तो इस इलेक्ट्रिक को यूज करने के लिए जो फीडर है, जी सर, तो इसको अलग अलग भी किया गया है। जी सर। इसको और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है? सर एक तो जो कॉमन ग्रिड का कॉन्सेप्ट है सर, कॉमन ग्रिड के कॉन्सेप्ट को हम लोग एम्प्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा सर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्टेप है कि जो घर में ही लोग बिजली प्रोड्यूस करें, यदि बिजली वो प्रोड्यूस करते हैं तो उस पर उनको सब्सिडी मिलेगी, तो इस तरह के स्टेप्स को लेना चाहिए सर। इसके अलावा सर जो ट्रांसमिशन लॉस होता है, तो ट्रांसमिशन लॉस होता है और सर बिजली की चोरी काफ़ी ज़्यादा होती है सर, तो एक स्मार्ट मीटर एक जो बिहार गवर्नमेंट ने जैसे पटना में उसने लागू किया है सर, वो हर जगह पे उस व्यवस्था को लागू करना चाहिए। किसी भी ब्लॉक अनुमंडल में आपका पोस्टिंग हो जाता है, जी सर, वहाँ इलेक्ट्रिक शॉक से किसी आदमी का डेथ हो जाता है, जी सर, मौत काफी संख्या में वहाँ एकत्रित हो गई, कैसे इस समस्या को कैसे टैकल करिएगा? सर उनकी मौत हो गई है सर। सबसे पहले क्योंकि सर सबसे पहले ये कोशिश करने की, मॉब को समझाने की कोशिश करूँगा कि
और ये निर्धारित करने का कोशिश करूंगा कि गलती किसकी थी, स्टेक होल्डर्स कौन थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, और यदि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर गवर्नमेंट के थोड़ा अपना जो पिच है ना, आवाज का जी सर, टोन है, उसको थोड़ा सा और बढ़ाइएगा तो अच्छा है। जी सर। तो गवर्नमेंट के यदि स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं सर, तो सबसे पहले उन लोगों को कल्प्रिट घोषित, जो भी कल्प्रिट है उनको पकड़ने की कोशिश करूंगा सर। इसके अलावा जो भत्ता होता है सर, जो गवर्नमेंट का जो भत्ता उनको मिल सकता है, वो जल्दी से जल्दी डिस्पैच करवाने की कोशिश करूंगा, और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा जो लोग हैं कि ऐसे जैसे कई बार भीड़ वायलेंट हो जाती है, तो ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जो भी होगा इनके लिए जितना भी बेहतर उपाय किया जा सकता है वो कोशिश करूंगा। और उसके अलावा सुरक्षा का जो इक्विपमेंट है सर, जिसे पहनकर यदि इलेक्ट्रिसिटी के साथ वो ब्लॉक में मौजूद हो, इसकी व्यवस्था करूंगा। हिमांशु जी, बिहार के पिछले 7 दिनों की घटनाओं का, बिहार का हमको करंट अफेयर्स में कुछ बताइए आप, क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया? सर एक तो सर कल ट्रेन एक्सीडेंट हुआ सर, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का बक्सर के पास। इसके अलावा सर उसमें आपने क्या फील किया? हुआ तो सब लोग जानते, क्या फील किया उसमें, क्या कमी, क्या सरकार का सपोर्ट उसमें क्या रहा, अच्छा क्या लगा कि नहीं सब ठीक है? सर इसमें ये समस्या है सर कि हम लोग रेलवे को प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं, हम लोग रेलवे सुरक्षा कवच एक ऐप भी बनाया है हमने, जिससे कि रेलवे के एक्सीडेंट्स को रोक सके। पर ऐसी घटनाएं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बढ़ रही है, पर ऐसी घटनाएं पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई हैं। और ऐसी घटनाओं में सर, इसके अलावा सर कास्ट सेंसस पिछले वीक काफ़ी न्यूज़ में था सर। तो कास्ट सेंसस और सर इसके अलावा मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है सर। ये बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट पास हुआ है पटना एलिवेटेड सड़क का, बेऊर से लेके एम्स तक। सर ये क्या आप मरीन ड्राइव की बात कर रहे हैं? मरीन ड्राइव वाले रोड मुझे नहीं पता है सर। 1000 करोड़ का हमारे भाई, एक बेऊर से लेके वहां तक का आपके एम्स तक परसों NHAI ने क्लियर किया है। यस सर। फ्लाई ओवर रूबर से, यस सर मैं समझ गया। यस सर। 9050 करोड़ सर मुझे इसके 950, ये तो आपने देखा नहीं ना, ये तो बहुत। और बताइए, और परसों जो अखबार में हम लोग करंट अफेयर्स बताइए, और क्या सर? एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट तो ये है, सरकार ने निर्णय को बताइए। सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है सर। एक चीज है, तो पंचायत सरकार भवन क्या चाहिए, जानते हैं इसके बारे में? पंचायत सरकार भवन सर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पर यदि आप गेस करने बोले तो मैं कर सकता हूँ। गेस करके क्या करिएगा? पंचायत सरकार भवन वहाँ, तो अब हमें ये बताइए, उसके बाद अभी किस देश के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए हुए थे? सर तंजानिया की राष्ट्रपति सुलूह हसन आई हुई थी। मैडम जी सर। नियोजित शिक्षक को जानते हैं? जी सर। गांव में हम लोग रहते हैं, तो नियोजित शिक्षक क्या कहीं भी है, यहाँ भी है, वो लोग बहुत हल्ला कर रहे थे बहुत दिनों से जी कि सर। हम लोग को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। जी सर। ठीक है, तो सरकार ने दर्जा देने के लिए ड्राफ्ट बनाया है, जी सर। जिसको कि उन्होंने नियोजित शिक्षक जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप का प्लॉट किया है। जी सर। पढ़े हैं उसके विशेष खास बात क्या है? सर मैंने नहीं पढ़ा सर इसके बारे में। कुछ काम नहीं किया ना आपने हिमांशु जी? अच्छा, इस पर काम किए होंगे अभी तो आपने एशियन गेम अभी। जी सर। क्या खास विशेषता? सर पहली बार भारत के पदक तालिका 100 से ऊपर आई सर। भारत का पोजीशन 4th रहा सर। महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा पदक जीता सर। चलिए, महिलाओं ने? ये सर टोटल जो भारत की महिलाएं थी उन्होंने पुरुषों से ज्यादा पदक जीते। कहाँ से ला दिया? 48-52 है ना, महिला 48 है,
सर आज पीआईबी का रिपोर्ट पढ़ रहा था सर, उसमें किसका? पीआईबी पे लिखा हुआ था सर ऐसा कुछ। कहाँ Best पर? information भी यस सर, हाँ अभी पढ़। देख लेने को जी, ठीक है, जी, देख लीजिएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और क्या पोजीशन 4th है? जी सर। कभी ये सेकंड पोजीशन भी था। पहले एशियन गेम में 1952 हाँ, जो तो फिर इसको हम थोड़े बोलेंगे कि कोई ये चौथा पोजीशन रहा, ये सब कोई बोलने का तो कोई चीज भी नहीं। जी सर। चीज वही है जो आपको ये है कि उसमें महिलाओं का धमक, मतलब उसका ये बढ़ा, यस सर। है ना, भागीदारी बढ़ी। जी सर। ठीक है, बाकी कुछ महिलाएं उभर के सामने आई। जी सर। पारुल चौधरी, सिफत कौर सामरा, पढ़ लीजिएगा इस सब, ये लोग का आया, ये लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी सर। ठीक है, हम लोग हिमांशु जी आपके इंटरव्यू को समाप्त कर रहे हैं जी और सर। फीडबैक दे दें आपको। जी और सर। फिर आपको जो है, चूंकि आप नए कैंडिडेट हैं, आपको जो पूछना है पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब समय नहीं आपके पास है। जी सर। ठीक है हिमांशु, करंट अफेयर्स को हमेशा देखना ही होगा। यस सर। आई कांटेक्ट थोड़ा मेंटेन करो, जो क्वेश्चन पूछते हैं उनसे जी सर। चलो उन्हीं से आई कांटेक्ट रखना है तो उठा दो, जी सर। बाकी को देखने की जरूरत नहीं। ओके सर। जब अंदर आते हो किसको विश करना चाहिए? तुमने कहीं पहले भी वहाँ पे इंटरव्यू दिया है क्या? हाँ सर, एक अभी दिल्ली में था तो वहाँ दिया था, दृष्टि में दिया था सर। क्या बताते हैं वहाँ, किसको विश करने को? जो वो बोलते हैं, मतलब जो फीमेल मेंबर ही थी पहले हैं, तो फीमेल मेंबर को कीजिए, नहीं तो पहले चेयरमैन को और फिर साइड में। चेयरमैन को विश कीजिए और गाने। ओके। ठीक है, यस। सीनियर मोस्ट को सैल्यूट का मतलब होता है सबको सैल्यूट बोलिए। यस। आर्मी का, ये आर्मी कहता है, यस सर। उससे ज्यादा डिसिप्लिन फोर्स तो कोई नहीं है। यस सर। ठीक है, आपकी वॉइस अच्छी है, कॉन्फिडेंट है, बोलते अच्छा है। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स का काम कीजिए। सर एक ये आ जाता है समस्या सर। आप पूछिएगा, हम लोग एक एक करके जी बता जी सर। ठीक है, हाँ हिमांशु जी, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स जी सर। और जो एजुकेशन हुआ है इलेक्ट्रिकल, जी सर। तो ये इलेक्ट्रिकल जो विंग है ना इंजीनियरिंग, और आज उसकी जो सार्थकता है, उसका महत्व है जी सर। हर एक क्षेत्र हो, जी सर। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, आईटी का क्षेत्र हो। अभी देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, बीच बीच में इलेक्ट्रिक बाधित हो जाता है, जी काम सर। रुक जाता है, जी सर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो इसका आपकी तैयारी भी अच्छी है, नॉलेज भी अच्छा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन संभावित है। जी सर। तो ये आपको तैयार रखना चाहिए, है ना। तो सब जो पहलू है वो करंट अफेयर्स है, जिसमें सब बताया। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ग्रुप आप जिस पर कर लेंगे। समान प्रशासन भी आपने ठीक ही ठाक बताया है। करंट अफेयर्स में जैसे बिहार वाला जो है ना, उसमें फंस गए, तो जी पेपर सर। सब देख लीजिए 3-4 दिन का, आपका तो हो जाएगा। बाकी 16 तक देखते रहिए, जी सर। तो आपका 3-4 क्वेश्चन डेली निकल जाएगा। वो जी। पूछेंगे तो वो सस्ता में सलटा दीजिएगा उसको, जी सर। बहुत दिक्कत नहीं होगी उस तरह से। एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ सर, तो उसमें ये बिहार वाले न्यूज़ नहीं आते। एक न्यूज़पेपर ऐड करना होगा, वेट जी करना सर। होगा आपको, ठीक है। यस सर। क्योंकि इतना बड़ा मंडल करके यहाँ आए हैं, जी सर। एक हिंदी का न्यूज़पेपर है actually। जी सर। हिंदी में रहेगी तो फिर सभी लोग यहाँ ज्यादा पढ़ते हैं, तो उसको फ्लो उसका ज्यादा है, तो एक सब रखिए, वो 3-4 न्यूज रहते हैं, उसको तैयार करेंगे। हमें लगता है कि उससे काफी बिहार को मिल जाए। ठीक है सर। ठीक है, बाकी ओके, अगर आप आना चाहते हैं तो एक बार और भी आ हाँ मैं सोच रहा हूँ कल एक आ जाऊँ, कल एक सकते, गैप देना चाहिए। परसों आ जाता हूँ सर, फिर हाँ? परसों आ जाता हूँ फिर। हाँ, गैप देके आप अपना देख लीजिएगा टाइमिंग, काम करो। हाँ, पढ़ लीजिए। पता करो कोई आस पड़ोस में जान पहचान का हो जहाँ हिंदी न्यूज़पेपर आता हो, यस सर। उससे 5-6 दिन का पेपर उठा, यस सर। उसको इम्पोर्टेंट है। आज मैं कर लेता हूँ सर इसे। जी सर। कुछ नहीं है कि पूरे पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देख के, भाई स्टूडेंट और है ना, यस सर। वो तो देख लेंगे सरकारी न्यूज क्या है। यस सर। कि अब किशनगंज में तो हाईवा ने पलटा दिया, 4 आदमी मर गया, ये बड़े न्यूज नहीं है। यस सर। लेकिन पीरपैंती में एक कोई प्रोजेक्ट प्लांट लग रहा है, वो बड़े न्यूज है। यस सर। बस उसको नोट कर लिए, दूल्हे पीरपैंती में 400 मेगावाट का 2 प्लांट लगेगा, खत्म। स्टेट पर 16 लगना है, खत्म बात। वो न्यूज है, न्यूज है, Yes, sir. सरकार गवर्नमेंट है गवर्नमेंट का कि हमको पंचायतों में जो हर सार्वजनिक स्तर पर देने के लिए हमको देना है, तो न्यूज है वो। ठीक।
आज आयुष्मान पे भी कुछ डेटा आया हुआ है। आयुष्मान भारत पे? हाँ, कुछ डेटा आया हुआ है Okay. इंडिया में जरूरत है। ओके, मैं देख लूंगा सर आज। जी सर, इंडिया में डेटा वाले फैक्ट्स कुछ कुछ मुझे याद करने हैं अभी, जैसे बिहार का इकोनॉमिक सर्वे का जो रफ डेटा है मुझे याद है, पर यदि कुछ वो इंटरनल पूछ दिए उस तरह से तो वो देख लूंगा। देख सकते हो। यस सर। और दूसरी बात है कि आपका जो वो सोलर एनर्जी का बोल रहे हैं, तो जीरो उत्सर्जन है ना। पहला चीज तो ये बोलना चाहिए ना कि जीरो की सेफ्टी, महिलाओं की सेफ्टी, उसकी वो उससे तो ये है ना कि अभी हम लोग जो अभी नहीं पंच क्या अभी जो पंचामृत। पंचामृत जो की एनर्जी यही तो है, यस सर, रिन्यूएबल। उसी पर ना है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी है और इस सब पर करेंगे, तो उत्सर्जन को हमको घटाना है। बोला था फिर बीच में, मतलब लेकिन पहला पॉइंट ये होना था। जी सर। ठीक है, और पूछ लीजिए या अदरवाइज फिर इसी ना और आ जाइए तो। सर मेरे साथ जो समस्या होती है, जैसे पिछली बार ऐसा हुआ था सर कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, और मेरे साथ वो हिंदी में, मतलब यदि क्वेश्चन हिंदी में वो पूछना स्टार्ट करें तो You should speak in Hindi. स्पीक इन हिंदी, राइट? They are asking questions in Hindi. यस सर। You should speak in Hindi. आप तो टर्मिनोलॉजीज यूज करो, बीच में दोनों यूज करते हैं लोग, और क्या बीच Okay, में कहीं बोर्ड पे फंसते हो तो यूज करो। बट इफ दे आर स्पीकिंग हिंदी, नहीं, वहाँ अंग्रेजी जो पूछेंगे तो अंग्रेजी से जवाब देंगे, बात खत्म। ओके सर। ठीक। और सर एक और, मतलब ये इसके पूरी तरह दाढ़ी रख के जा सकते हैं या फिर पूरी तरह से हटा ले? क्योंकि सर तो मतलब उससे पर्सनली पूछोगे तो मैं कहूँगा दाढ़ी मैं हटा उस दिन लेता के लिए हटा के जाइए, बाकी Yes, अपना sir. जो डिजाइनिंग करना है ठीक है, करते रहिए, लेकिन उस दिन क्लियर कर। यस सर। पुलिस सर्विसेज में दाढ़ी वैसे भी नहीं लोग है। क्या सर? पुलिस सर्विसेज में दाढ़ी लोग नहीं है, यस सर। है ना? तो इसका मतलब नहीं होना चाहिए दाढ़ी। यस सर, ठीक है सर। चलिए, ठीक।